everyone, and welcome to Sante's weekly broadcast. I am Ariba Tarikutfi, and I will be hosting this weekly broadcast, which is called Nazariya, the power of experience. हम जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, we often compare it with academia and bookish knowledge. And academics और studying जो है वो एक इंसान को skills तो सिखा देती है एक particular field की और job, but ये नहीं सिखाती कि उस knowledge को आप किस तरह rightly अपनी practical life में जो है वो apply कर सकें. And appropriate application academic knowledge की सिर्फ तब होती है जब आपका जो तजुर्बा है real life situations का लाइफ में अप्लाई कर सकें सही से. Sante would like to shine some light on it and have a discussion over this topic with various top doctors of Pakistan. And since we are talking about the top givers and top doctors in Pakistan, so first I would like to introduce Dr. Moin Yaqeen, who is here with us today. He does not really require an introduction, of course, but to be precise, he is a well-renowned ophthalmologist and a leading eye surgeon of Pakistan. He has an experience of almost 2 decades, and Dr. Moin is currently the head of ophthalmology at Lahore General Hospital. Moreover, Dr. Moin is the president-elect of the Ophthalmologic Society of Pakistan. So, Assalamualaikum, Dr. Moin. Thank you for, first of all, joining us here in this weekly broadcast, Nazariya, with us today. और आज जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है वो आपको देख रहे हैं और who look up to you and वो जानना चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने क्या लर्न किया है इस अपनी फील्ड में. So पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Thank you very much, Ariba. It's a great experience to be here. And I think आप लोगों का बहुत अच्छा initiative है, which it started as a unique idea कि जिससे you can get real life experiences for ophthalmologists. Or I think we'll have a good time today sharing this knowledge, and we'll go on with the interview as it goes. Thank you so much, Dr. Moin. So let's get on with it. And मैं पहला अपना आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि since we are talking about experience, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं अपने सबसे ज्यादा जो कॉमन केसेस होते हैं इन अ डे जो आपकी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस करते हैं? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन केसेस? It's a I think pertinent question. इस इंटरव्यू के हिसाब से the most common disease which we encounter पाकिस्तान में diabetes is a rampant disease जो हम बहुत ज्यादा मिलती है. नंबर 2 पे आप ग्लाकोमा बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन नंबर 1 पे अगर आप लेके जाना चाहेंगे वो मैं मिस कर गया, वो दैट इज कैटरेक्ट जो कि हम बहुत ज्यादा रूटीन में देखते हैं और जिसकी सर्जरी ज्यादा आती है. लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट ब्लाइंडिंग डिजीज है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली glaucoma. Or I'm very glad that today we are talking about glaucoma, which needs to be discussed. Yes, I agree with you. And whenever someone talks about eye care, they of course mention glaucoma first and foremost. So मेरा second question, Professor Moin, यही है कि what is the prevalence? कितना फैलाव है glaucoma का patients का in your view, in your नजरिया कि किस आपकी प्रैक्टिस में कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रेवलेंस है ग्लाकोमा की? मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं बता सकता हूँ कि probably I would like मतलब 5 to 10% of my practice would be of glaucoma, और उसमें मैं probably 5 से 5 to 10 patients देख लेंगे. It depends very on कि मैं किस वक्त किस position में बैठा हूँ. If I'm sitting in a sort of a routine outpatients in my private clinic, there'll be a run of mill of other cases as well. लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, LGH में हूँ और आई एम रनिंग अ ग्लाकोमा क्लिनिक, तो ऑब्वियसली देन द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ऑल ग्लाकोमा पेशेंट्स, सो यू माइट हैव 20-30 पेशेंट्स ऑफ ग्लाकोमा कमिंग इन. सो वो वेरी करता है कितना है, लेकिन ओवरऑल ग्लाकोमा की इंसिडेंस इसी रेंज में आता है उस लिहाज से. तो सिंस हम अभी भी ग्लाकोमा की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसे केसेस जो कि आप स्पेसिफिकली आपका एक्सपीरियंस में आप शेयर करना चाहें विद द ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं आज? देखिए, ग्लाकोमा इज सच अ डेवास्टेटिंग डिजीज. मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ. देयर वाज एन ओल्ड, मेरा मतलब 50 years old school teacher, and he comes in और वो कहते हैं कि मेरी नजर कम हो रही है, मुझे पता नहीं लगा, मुझे साइडों से नजर नहीं आ रहा. तो मेरे खानदान में लोगों को है डिजीज ग्लाकोमा है, मेरे फादर हैड ग्लाकोमा, बट लेकिन आई एम बीइंग फाइन, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं आया. तो मैंने कहा लेट्स सी, हैव अ लुक. मैंने तो उसकी विजन देखी तो दैट वाज अबाउट 6'9" विद हिज करेक्शन ऑफ ग्लासेस. लेकिन व्हेन आई लुक्ड एट हिज ऑप्टिक डिस्क, देयर वाज कंप्लीट कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क.
because his cup disc ratio उसकी 0.9 तक पहुंच चुका था, pressures were 30, but it is such a slow growing disease that I was shocked to see. And then we had his test done, visual field and OCT. So we found out that he was actually in his end stage glaucoma, and he had tunnel vision with which he could see things, but obviously he could not see things from the side. And unfortunately, सबसे painstaking काम मरीजों को बताने का ये है कि a healthy patient who's walking around और उसको बताएं कि मेरा मतलब there's nothing we can do about it to get this back. वो एक चीज है जो मरीज को अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल आती है। और वो जिस तरह कहते हैं कि पैरों तले जमीन निकल जाती है इंसान की कि ये क्या हुआ मेरे साथ, पता भी नहीं लगा। तो इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी कहा जाता है। तो दैट इज वन थिंग which is very dangerous about glaucoma, especially जो primary open angle glaucoma है। जो एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है वो उसकी अच्छी चीज है कि इट कम्स इन पेनफुल डिजीज, और वो मरीज का आपको फौरन पता लग जाता है, उसकी नजर भी कम हो जाती है। तो एक्चुअली इट इज यूजफुल फॉर हिम एज वेल कि उसका पता लग जाता है। लेकिन प्रोबेबली जो अटैक होता है उसमें डैमेज सिग्निफिकेंटली ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी है, और वो उसी टाइम के अंदर ब्लाइंड हो सकता है। अगर किसी को अटैक का प्रेशर 50 पे चला गया तो if he doesn't get treatment he might be blind in like within 2 weeks. बट यही पेशेंट अगर ओपन एंगल ग्लाकोमा है तो कई साल चलता रहता है, मेरा मतलब उसके बाद उसे पता लगता है। स्पेशली हमारे मुल्क में कई बार मरीजों का ये नहीं कि प्रेशर 40-50 पे चल रहा होगा, वो 25-30 जो ग्लाकोमा वाले आते हैं उनका स्लोली, जिस तरह कोई चीज अब किसी जगह पानी पड़ रहा है उसने इरोड करता गया उस तरह प्रोड्यूसिंग दैट डैमेज, एंड इवेंचुअली मरीज इज इन अ वेरी बैड शेप। I agree कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इफ यू थिंक अबाउट इट कि लोग जो है तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक आप जो है कोई दर्द उसको ना उठे इंसान को। तो ये ही बात है कि ग्लाकोमा इज अ साइलेंट डिजीज, और जब तक आपको कुछ एक्सट्रीमली आपकी विजन में इफेक्टिवनेस ना हो पाए तो पता ही नहीं चलता इंसान को कि दे हैव ग्लाकोमा सिंस क्वाइट सम टाइम। तो आप हमें जो है कोई स्पेसिफिक आपकी कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन या फिर गो टू मेडिसिन या गो टू ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा, स्पेशली क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लाकोमा जो आप बात कर रहे हैं, या फिर सेकेंडरी ग्लाकोमा जो है, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक गो टू मेडिसिन फॉर दैट? देखिए अरीबा, नाउअडेज हमारे पास बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आ गया। जब हमने शुरू की थी ऑप्थेल्मोलॉजी 20 इयर्स बैक, तो उस वक्त प्रॉब्ली हमारे पास बीटा ब्लॉकर आते थे या प्रोपाइन, इस तरह की ड्रग्स आती, लिमिटेड अमाउंट। बट नाउ हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें सिंगल डोज वाले भी हैं, डबल भी, ट्वाइस अ डे भी हैं, और तीसरा है जिसमें फिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी है। तो इसमें से चूज करना डिपेंडिंग ऑन आई कस्टम चूज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड एंड डिमांड विच इज एप्लीकेबल टू देम। बट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम आई थिंक बीटा ब्लॉकर का मेरा पहले भी काफी एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है। तो आई थिंक जब से फिक्स्ड कॉम्बिनेशन आया बीटा ब्लॉकर एंड डोरजोलामाइड, आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट प्रेफरेंसेस टू यूज। जिन मरीजों में प्रॉब्ली कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा जरूरी है और जिन मरीजों में उनको प्रॉब्लम नहीं है दोबारा 2 बार डालने के लिए, तो मरीज गेट्स यूज्ड टू इट। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग जो इनमें ज्यादा है कि जो आपको 30% ड्रॉप चाहिए वो इनमें काफी सिग्निफिकेंटली आपको मिल जाता है, और कईयों में इनमें थोड़ा बहुत आपको पीछे से ऑप्टिक नर्व की भी रेगुलेशन है वो रिलेटिवली बेटर हो जाती है। So basically patient compliance जो है वो improve हो रही है because of this fixed combination. And when we are mentioning the fixed combination, you mentioned dorzolamide and timolol. So what are your views about that? हमारे पास सांते में भी जो है we have codorzal, which is also a fixed combination. So it is also do you use like इस तरह से आप इसको frequently use करते हैं, and what is your experience regarding it? थिंक फिक्स कॉम्बिनेशन बहुत सारे अवेलेबल हैं, मल्टीनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं। आई थिंक मैंने नेशनल भी यूज किया, इंटरनेशनल भी यूज किया, लेकिन आई वुड से कि कोडॉर्जल कंपेयर्स इक्वली वेल विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स। वो कई बार मरीज होते हैं वो कैन नॉट अफोर्ड द इंटरनेशनल, और जब भी उनको स्विच किया आई डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन द प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो इट इज वेरी इफेक्टिव, और सांटे की वैसे भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी हैं इस्तेमाल किए हैं, they get a very desirable result and very useful and cost effective to the patients. थैंक यू डॉक्टर मुइन, आपने हमें बताया कि किस तरह से आपके एक्सपीरियंस होता है और किस तरह से आप पेशेंट्स को देखते हैं, और आपको कुछ अनयूजुअल चीजें भी समटाइम्स दिखती होंगी, आई एम श्योर।
तो कोई ऐसा अनयूजुअल या अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स कोई किसी मेडिकेशन के साथ जो कि आपके साथ प्रैक्टिस में आकर हुआ हो, शेयर करें एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक कि ऑडियंस जो है दे शुड आल्सो नो कि इन रियल लाइफ जो है वो काफी डिफरेंट होता है दैन द बुकिश. सो एनी अनयूजुअल या अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स दैट हैज एवर अकर्ड विद यू रिगार्डिंग अ मेडिकेशन? ये 2-3 सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हैं जो एंटी ग्लाकोमा के हैं डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिकेशन में, विच आई थिंक आर, कई बार तो आपको पता है कई साइलेंटली आ जाते हैं विच यू डू नॉट रियलाइज. बीटा ये है कि करीब मरीज आता है, वो ही डज नॉट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम. वो कहता है डॉक्टर साहब सांस बड़ा चढ़ना शुरू हो गया. तो दैट टेल्स यू कि बीटा ब्लॉकर इज वर्किंग एंड उसका मेरा मतलब दैट इज कॉजिंग एस्थमेटिक इफेक्ट टू देम. तो यू शुड नीड टू रियलाइज दैट कि उसको इमीडिएटली बंद कर दे. अल्फा एगनिस्ट का इफेक्ट मैंने देखा है कि मेरा तो जितने आते मरीज, एक तो कहते हैं मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, एक है कि मुझे पल्स मेरी तेज चलना शुरू हो गया. ये 2 चीजें हैं. और जो बहुत अनयूजुअल एक है जिस लेटेनोप्रोस्ट है, उसका मैंने देखा हुआ है कि आई हैड पेशेंट्स जिनको के हर्पेटिक केराटाइटिस बहुत रेयरली रिपोर्टेड है. वो पाकिस्तान में मैंने देखा हुआ है. आई हैव सीन 3 or 4 पेशेंट्स out of innumerable patients which I've seen. Even as an eye specialist, I gave that to him and he developed and he was quite upset with it. But the good thing is all of them resolve with discontinuation of medicine. जहां तक ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमारी है, इसमें जो डोरजोलामाइड है उसका इफेक्ट देखने में आता है कि इसके साथ यू गेट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, आंखें रेड होंगी और उसके साथ जो स्किन जो है वो आपकी डर्मेटाइटिस थिक हो जाती है और मेरा मतलब रफ हो जाती है. The problem what you see is, अच्छी चीज ये है कि it does not happen immediately in these patients. Usually it takes a while before. मरीज भी कई बार कहते हैं मैं तो कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब कैसे हो गया. तो वो मरीजों को बताना पड़ता है कि it sometimes takes a while. इनमें से जो मतलब फोर फ्रंट पे रहती है उनमें ट्रेवोप्रोस्ट है, जिसमें मरीज को दे जो जितने प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है मरीज को दे तो नेक्स्ट डे दे माइट से कि आंख बहुत ज्यादा रेड होगी और हमने डिसकंटिन्यू करनी पड़ जाती है. तो एक ड्रॉबैक जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का है कि कई बार आपका मरीज का कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है उसकी वजह से, जो कि चीज ये आपको फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में रिलेटिवली कम दिखने में आती है. Okay. That was a very good insight for our viewers, I'm sure. Since glaucoma जो है वो is such a life-changing disease and life-changing condition, what do you think is the most challenging aspect for you in treating glaucoma? ग्लाकोमा में जो गेम चेंजर आता है जब मरीज इज लूजिंग हिज विजन एंड यू आर गिविंग ट्रीटमेंट एंड यू डू नॉट एक्चुअली, जिस वक्त टाइम है आपने मेडिसिन से सर्जरी में स्विच करने का, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम इन ग्लाकोमा. क्योंकि इफ यू लूज दैट विंडो द पेशेंट एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाता है. What I found over in practice कि अगर जिस वक्त आप शुरू करते हैं और उससे शुरू करते करते जब उसका कप टू डिस्क पॉइंट 8 तक पहुंचना शुरू हो जाता है और उसके विजुअल फील्ड और उसकी RNFL थिकनेस ड्रॉप करना शुरू हो जाती है, एट दैट टाइम इज यस और नो का डिसीजन आपको कर लेना चाहिए. मरीज से डिस्कशन शुरू करनी चाहिए कि हो सकता है प्रेशर इज 18 or 20 व्हिच माइट बी विद इन द लिमिट्स, लेकिन अगर उसकी प्रोग्रेसिव डैमेज हो रही है तो ही इज नॉट गोइंग maintain that vision. और डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है. if he's relatively younger age so you have to go for trabeculectomy or a valve surgery depending on उसकी requirement क्या है. I think but the problem is मरीज भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब को खतरे नहीं है जिससे बेहतर हो जाए, ऑपरेशन तो मैंने कराना नहीं है. कई बहुत थोड़े कहते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दे, खतरों से मैंने जान छोड़नी है. तो वो एक डायलेमा आप आ जाते हैं कि इसका कैसे फैसला करें और क्या करें. प्रॉब्लम ये है कि जब भी ग्लाकोमा की सर्जरी करते हैं तो मरीज को तो मैं बता देता हूँ कि फॉर विद इन अ मंथ योर विजन इज गोइंग टू गो डाउन और उसके बाद वापस आएगी. क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह कैटरेक्ट सर्जरी है तो आपकी इमीडिएटली नेक्स्ट डे पट्टी खुलेगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेटर. ग्लाकोमा सर्जरी में एक्चुअली थोड़ा सा रिवर्स हो रहा होता है, तो बिकॉज द आई इज डिफ्लेटेड और उसके बाद वो रीफॉर्म होती है और उसके बाद उसके अंदर फंक्शन रीगेन होता है. तो दैट the reason I immediately don't go for surgery. जो मरीज आते हैं you put them on drops और उसके बाद you assess them and get the confidence of the patients disease के बारे में, and once they are confident on that और आपके साथ उनका repo build हो जाता है then you decide on surgery. Sometime you have to decide first day as well, but sometime like 10 years से आप डाल रहे हैं और उसकी ड्रॉप करना पहले नहीं कर रही थी और बाद में कर रही, तो you need to decide on surgery. But I think that is one critical decision because
कई बार सर्जरी के साथ मरीज की विजन ड्रॉप भी होती है, और कई बार मैंने तो कुछ 6'9" वाला था 6'18" पे चला भी जाता है, उनको कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, उस तरह की चीजें आ जाती हैं. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर रनिंग, बट आई थिंक आउट ऑफ दिस आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग जो डिसीजन होता है मेरे लिए यही होता है. आपके व्यूज से मुझे और आपके एक्सपीरियंस से यही समझ आ रहा है कि अर्ली जो डायग्नोसिस है ग्लाकोमा में, it is essential. So, what do you think? How important is the early diagnosis in glaucoma? I think early diagnosis he is the key to management of this disease. और जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या फोरफ्रंट पे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनका मैकेनिज्म यही है कि दे पिक अप ग्लाकोमा अर्ली, तो ताकि ग्लाकोमा के साथ जो ब्लाइंडनेस है दैट इज प्रिवेंटेड. मेन प्रिवेंशन का ही रोल है. इस वजह से द मेन थिंग विच नीड्स टू बी रीइटरेटेड कि जहां अब, क्योंकि आपकी कई जगह एनके चेक होती है लेकिन आपकी पीछे ऑप्टिक डिस्क या प्रेशर नहीं चेक होता, ऑप्टोमेट्रिस्ट करेंगे नहीं करेंगे दैट इज अप टू देयर. लेकिन वेस्ट में हमेशा इट इज स्टैंडर्ड कि दैट इज, हम भी जिस देखते हैं तो आई पिक अप मोस्ट ऑफ माय ग्लाकोमा पेशेंट्स व्हाइल डूइंग रूटीन रिफ्रैक्शन के लिए आते हैं. पेशेंट ऐनक का नंबर चेक कराने के लिए आते हैं, वहीं से पकड़े जाते हैं और वहीं उनका टेस्ट करते हैं. एक ग्लाकोमा सस्पेक्ट है, उसका प्रेशर भी ठीक है लेकिन कप डिस्क रेशियो ज्यादा आ रहा है, उसका यू गो फॉर एन ओसीटी एंड विजुअल फील्ड एंड यू पिक इट अप एट दैट स्टेज एंड इट्स वेरी गुड फॉर द पेशेंट, क्योंकि ही इज सेव्ड होल ऑफ हिज लाइफ, ही कैन हैव अ बेटर आउटलुक. लेकिन अदरवाइज कई बार जो जिस तरह कई बार मरीज आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो उसमें नहीं पिक हो तो उसमें बहुत ज्यादा मसला आ जाता है. इस वजह से कई जगह अगर आप देखें, कई हॉस्पिटल हैं जो लो कॉस्ट मरीज देख रहे होते हैं, या चैरिटी रन हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहां पे प्रेशर चेक करने के लिए एयर पफ टोनोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है, टू जस्ट टू स्क्रीन पेशेंट्स कि आप वहां से जितना ग्लाकोमा के मरीज पकड़ लें दैट इज बेटर. किसी का प्रेशर ज्यादा है तो ट्रीटेबल फैक्टर तो आपका इसी चीज में आ जाता है, लेकिन उसके बाद जिसका प्रेशर ज्यादा है वो एक रेड फ्लैग उठ गया तो फिर आप उसको और दूसरे प्रोसेस से निकाल दें या उसका ऑप्टिक डिस्क जरूर देखें. तो आई मेक इट अ पॉइंट कि जिस मरीज को देखें आई पिक दिस अप अर्ली, और जिसकी ट्रीटमेंट है यू डिस्कस इट विद देम और फिर देन स्टार्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. So early diagnosis is extremely essential in treating glaucoma, and in my opinion, हमें awareness जो है वो उस पे focus करना चाहिए to get that early diagnosis. So Professor Mohi, what do you think is the future of ophthalmology, and what do you see? What kind of changes are there in future regarding ophthalmologic practice? I think ophthalmology is the most rapidly advancing field क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है. Our fathers, जितने मेरा मतलब 40 years, 50 years back, they saw the transition from intracap to extracapsular and then phacoemulsification. We've been fortunate कि surgical techniques बहुत ज्यादा change नहीं हुई, but there are new techniques which are coming in every day. I think glaucoma is the disease जिसके अंदर I think in the future maximum things are going to happen. एक मिनिमली इन्वेसिव ग्लाकोमा सर्जरी जो कि अभी हमारे पास यहाँ पे चूंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव जो उसके डिवाइसेस हैं वो अभी लॉन्च नहीं हुई. आई थिंक दे आर द फ्यूचर इन ग्लाकोमा, जिसके अंदर आप कोई स्टेंट डाल दें, थोड़ा सा प्लग लगा दें, इन विच यू कॉज मिनिमम में जो हम प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सर्जरी है, जिस तरह फेको आई तो कैटरेक्ट एक स्टैंडर्डाइज सर्जरी बन गई, इस तरह ग्लाकोमा विल बिकम अ स्टैंडर्डाइज सर्जरी जिसके अंदर जो अप्स एंड डाउन आते हैं, प्रेशर ऊपर नीचे होता है, लोगों की विजन नीचे जाती है, they are going to get much less and probably patients are going to benefit much more. ये तो सर्जिकल है. दूसरा जो आ रही है चीज इन अपफ्रंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which is very upcoming. जिस तरह मरीज है अगर किसी के पास भी गया है, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास भी गया है, यू पुट अ कैमरा ओवर देयर, कैमरे ने पिक्चर खींची, अगर उसको लगता है कि उसने एल्गोरिदम्स उसके अंदर मौजूद है and if it thinks it matches with the algorithm of glaucoma, so it automatically will give a red flag to the patients कि आपकी the glaucoma का risk है, तो you should immediately consult an ophthalmologist और वहां से treatment ले लें. इस वक्त probably जो disease है उसमें diabetic retinopathy में artificial intelligence बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है. It's in the pipeline for years, but now I think it is coming in the forefront और वो इस्तेमाल होगी. इसी तरह रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी है वहां पे होगी जहां पे ये चीजें पकड़ी जा सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा. एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है उसमें भी मतलब पीपल आर स्टार्टिंग दैट एज वेल.
So it seems like ophthalmology का future is pretty bright for the people and for the ophthalmologists. Easier हो जाएगा आपको diagnosis में भी, और लोगों को भी easy हो जाएगा कि उनका diagnosis early हो सकेगा इससे. अच्छा, now do you have any up and coming ophthalmologist के लिए कोई advice या कुछ आप अपने experience से उनको कोई advice देना चाहेंगे जो हमारे viewers देख रहे हैं आपको? यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस वक्त व्हेन यू आर सीइंग अ पेशेंट, बी पैशनेट विद द पेशेंट, और उस तरह देखें जिस तरह आप समझे कि आप अपने फादर को ट्रीट कर रहे हैं या अपने रिलेटिव को ट्रीट कर रहे हैं, टू गिव हिम दैट सर्विस. और उसके अंदर चीजें सारी देखें जो कि देखनी चाहिए. रिलेटिवली कई बार हम फोकस्ड हो जाते हैं, सिर्फ आगे देखना है, पीछे नहीं देखना, तो उस वजह से कई चीजें मिस हो जाती हैं. और जो चीज करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करें and make a commitment कि मेरा मतलब ये diagnosis है. That actually makes you more confident, and that actually improves your the training or your outlook to the world as well. और इसके बाद the next thing is, once you are there doing everything, then be patient. आपको चीजें टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे. हम कई बार हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं. यू impatient कि ये मुझे आज ही मिल जाए और सारा कुछ एक दिन हो जाएगा. So ophthalmology unfortunately is a difficult specialty to learn. इसमें जितनी वॉल्यूम से चीजें आप करते हैं, अगर indirect सीखनी है, unless you do 100 or 200 indirect, you're not going to get a feel of what it is. इसी तरह हर सर्जरी, कैटरेक्ट अगर 100 नहीं करेंगे तो तब तक पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, किस सिचुएशन से गुजरते हैं. तो you see हर पेशेंट को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें and record your experiences. That is going to help your future. मैंने भी ऐसे ही सीखा, and you build on your future. और फिर जितना अपकमिंग नॉलेज है, मीटिंग्स है, कीप अपडेटेड विद देम सो यू आर नॉट लेफ्ट आउट. और एक ये नहीं है कि यू आर वर्किंग एट अ डिफरेंट पेस और बाकी दुनिया किसी और तरफ चल रही है. That was a great advice for the future ophthalmologists and the ophthalmologists that are already in the field, but they actually look up to you. Thank you, Professor Moeen. That was a great conversation, and it was a very learned conversation for us, and I'm sure for the audience as well. कि इतनी अच्छा आपकी insight मिली हमें, आपका नजरिया हमें पता चला, और हमें ये भी मालूम हुआ कि कितनी पावर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली क्या चीज होती है. सो आपको कोई लास्ट फ्यू कोई वर्ड्स एंडिंग कॉन्वर्सेशन के आप मेंशन करना चाहेंगे? I think thank you very much. I think COVID and with all these जिसमें कि आपका education सारी drop हुई, I think this was a wonderful idea by Sante, and I would wish you the best of luck, and I think you hosted the event very well. Thank you very much. Look forward to seeing you and discussing things with you next time. Thank you so much, Professor Moeen. I would like to end this great conversation with a quote from the legendary scientist Albert Einstein. Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience. And Professor Moeen, certainly your nazariya enlightened us with how much power your experience holds. And on this note, I, Ariba Tariq Lutfi, would see you in the next broadcast. Thank you, everyone. Thank you.